So friends, in our previous class, we have discussed about two major divisions of nervous system. The very nature of brain is that it is enigmatic, that it is having a lot of puzzles. Whatever has been discussed in Gita, गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण कि that the root of our existence lies upwards, है ना? The root of our existence is not lying there downward. तो वो कुछ पेड़ जैसा नहीं है ना? हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो बॉडी और माइंड का जो पूरी फंक्शनिंग है, मतलब उसकी जो रूट्स हैं वो ऊपर हैं। बाकी ये जो हाथ पैर और बाकी ऑर्गन्स हैं हमारे, सो उनके रूट्स जो हैं वो ब्रेन में है। और इसीलिए आपने शायद अगर बायोलॉजी में पढ़ा होगा आप में से कुछ लोगों ने कि हमारा जो एक डेवलपमेंट एम्ब्रॉयो का स्टार्ट होता है, सबसे पहले ब्रेन से स्टार्ट होता है। सबसे पहले ब्रेन बनता है। ब्रेन में भी सबसे पहले पीछे वाला हिस्सा बनता है और फिर बीच वाला, फिर आगे वाला और फर्दर फॉर्मेशंस, वो सारा डेवलप होता है। There has been no single conclusion. Still, we are having a lot of queries, multiple explorations to understand about the structure of brain, to understand about the role of brain in our human life. Actually, according to a conjecture, it is said that only 10% of our human brain we have, somewhere reached to some kind of knowledge about, that. So with this kind of introduction, I would like to start further about certain interesting aspects which are there about the brain. There are certain very interesting aspects. So our brain functions like an orchestra, okay, just like an orchestra. In orchestra, what we see? In orchestra, we see that there is one person who is in the center. There are others who are sitting in front of that person. And that person keeps on controlling how they are singing, how they are, whatever instruments that they are using, okay, how they are going to play that. So the same kind of, analogy we can utilize to understand that what kind of structure and functioning that we have in our brain. Okay, so there is constant communion, there is constant collaboration, there is constant some kind of interaction. Okay, so you can say in our very basic nature of our existence, in our very, as a part of our the feature of our brain, there is a lot of mutuality, there is a lot of sharedness. So brain is telling that we should be having a lot of mutuality, we should be having a lot of sharedness, you know. So that is one of the very interesting messages that we can have, from the knowledge of our whatever structure and function of brain that we have. The brain weighs in between 1300 grams to 1400 grams. वो आपने सुना होगा सनी क्या धर्मेंद्र के बेटे है ना, सनी, 2.5 किलो का हथौड़ा, तो 1.5 किलो का होता है लगभग ब्रेन। हाथ, अच्छा हाथ, हाँ यस, 2.5 किलो का हाथ, तो ये 1.5 किलो का हमारा ब्रेन। देयर इज डिफरेंस ऑफ 1 यूनिट इन बिटवीन 1.5 and 2.5. So 1.5 means 1.5 and 2.5 means 2.5. Okay. So friends, while the brain is having only 2% of total body weight, but it consumes 20% of available oxygen and energy. बताइए, ये पूरा हमारे कैपिटलिस्ट जैसा है। जैसे हमारे देश में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, है ना, वो कितना होंगे? थोड़े से होंगे। सुनने में आया है वो पूरा जो इंडियन इकोनॉमी के बारे में सर्वे हुआ है, वो ये कहता है कि
जो है अबाउट मोर देन 90% जो इस देश की लैंड है, प्रॉपर्टी है, वो यहाँ के 1 या 2% जो लोग हैं उनका कब्जा है। तो ब्रेन भी एक तरह का कैपिटलिस्ट है। आई मीन इट यूटिलाइजेस ऑलमोस्ट 20% ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन द ब्लड। हम लोग लगातार कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और ये जो सोचने की प्रोसेस होती है ना, और जो एक्सपीरियंस करने की प्रोसेस होती है ना, उसमें भी बहुत एनर्जी खर्च होती है। जो लोग पढ़ते लिखते हैं और इमोशंस बहुत इमोशनली, कुछ लोगों को आपने देखा होगा बहुत सारे इमोशनली रिएक्टिव होते हैं। तो जो लोग ज्यादा इमोशनली रिएक्टिव होते हैं उनमें वो थोड़े से कई बार दुबले भी हो जाते हैं, है ना, इसीलिए दुबले हो जाते हैं। ये मैं इसको जनरलाइज मत कर लीजिएगा प्लीज, है ना। हम में से कुछ लोगों के जेनेटिक नेचर होता है दुबलापन, तो इसको आप ही जनरलाइज मत कर लीजिएगा कि कोई भी दुबला है तो बस सीधा उसका ब्रेन रिएक्टिव है। ऐसे नहीं सोचिएगा। So friends, I mean brain is utilizing more than 10 times of whatever size that it is having, you know. In comparison to that, it is utilizing almost 10 times energy, है ना। दूसरे पार्ट कम यूज करते हैं, ये ज्यादा यूज करता है। तो एनर्जी चाहिए होती है जब भी, और नॉर्मली हम सभी लोग ब्रेन लगातार हम लोगों का कुछ ना कुछ सोचता रहता है। ये कभी मम्मी ने ये बोला, पापा ने वो बोला, या अपने अंदर ही कुछ ना कुछ चलता रहता है, मोनोलॉग चलता रहता है। बहुत कुछ अंदर ही सोचते रहते हैं, कुछ एक्सपीरियंस करते रहते हैं, अंदर मटरिंग चलती रहती है ना। कभी मटरिंग कभी बटरिंग। बटरिंग इज लेस बट मटरिंग इज मोर। मटरिंग इज मोर। मटरिंग हम लोग बहुत अंदर अंदर कुछ कुचुड़ बुचुड़, है ना, किच करते रहते हैं। ये इसने ऐसे कहा, इसने अब मैं बताऊंगा उसको, ऐसे अंदर हम लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। उसी तरह ले कहते हैं कि मन हमारा कभी शांत नहीं होता, चित्त हमारा कभी शांत नहीं होता। इट इज कॉन्स्टेंटली आई मीन फंक्शनल। और एक बात और आपको बताएं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात ये है दैट आवर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ more than I mean about 1 billion न्यूरॉन्स, जिनको अगर आप काउंट करना शुरू करें तो आपकी जिंदगी बीत जाएगी। कितनी जिंदगी आपकी लग जाएगी जानते हैं? आपकी 30,000 ईयर्स लगेंगे। अब 100 से भाग दे दीजिए, कितने साल चाहिए? अगर आप एक जिंदगी में, आप ये सोचे कि एक जिंदगी में 100 साल, 1 जिंदगी इक्वल टू 100 साल। राहुल जी, हर जिंदगी में फिर भूल जाएंगे पुराना पढ़ा लिखा। और हर बार नया काउंट करना शुरू करेंगे, कितनी न्यूरॉन्स है, कितनी न्यूरॉन्स है साहब, इतनी न्यूरॉन्स है, इतनी न्यूरॉन्स है। अरे राम राम। और सिर्फ न्यूरॉन्स ही नहीं है। हाँ जी सर, जिसने पहली बारी काउंट किया होगा उसने कैसे काउंट किया होगा? यार ये एक तरह का बस स्पेकुलेशन है। ये लाइफ पूरा एकदम जंजाल है। हमारा ब्रेन जो है ना, वो एकदम पूरा जंजाल है, जाल है, ठीक है। तो एक एक को ऑब्जर्व कर पाना यार, एक एक न्यूरॉन को बड़ा कठिन काम है। अच्छा, सिर्फ न्यूरॉन्स ही नहीं है, सिर्फ नर्व्स ही नहीं है, देयर आर आल्सो सम ग्लायल सेल्स। देयर आर सम ग्लायल सेल्स। ग्लायल सेल्स का मतलब कुछ डाई लोग हैं। वहाँ न्यूरॉन्स होती है, न्यूरॉन्स का मेन फंक्शन होता है, लेकिन वो न्यूरॉन्स कभी खराब हो जाती हैं, कुछ परेशानी हो जाती है, या उनको कुछ न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है ना। माइलिन शीथ वगैरह जो प्रिपेयर होता है किसी भी न्यूरॉन के बारे में आगे और पढ़ेंगे हम लोग, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है नर्व का। तो वो सारी चीजें डाई जैसी ग्लायल सेल्स आर आल्सो मौजूद देयर, एंड दे आर अराउंड 10 टाइम्स मोर न्यूमरस देन न्यूरॉन्स। क्या बात है भैया। ये जो एक्चुअली न्यूरॉन्स होती हैं उनसे भी 10 गुना ज्यादा होती हैं glial cells. There are different types of glial cells which are found in the brain.